Good afternoon, students. So, yesterday we have started our chapter 2, that is social change and social order in rural and urban society. Yesterday we have discussed about social change, that how social change affects the society. For example, we have done that before there is a currency of gold and coin, and after that it is changed into a paper currency. So it is a social change. We can say it as an example of social change. So forwarding our lecture, I am starting to discuss last paragraph of this page. Clear? Now in this paragraph we are going to discuss about changes in values and beliefs. ठीक है कि there is a change in our society on the basis of values and beliefs also. Let's start the reading. Changes in values and beliefs can also lead to social change. For example, changes in the ideas and beliefs about children and childhood have brought about very important kinds of social change. There was a time when children were simply considered small adults. There was no special concept of childhood as such, with its associated notions of what was right or wrong for children to do. As late as the 19th century, for example, it was considered good and proper that children start to work as soon as they were able to. Now what they are discussing in this paragraph, they are saying, वो क्या बता रहे हैं बेटा कि पहले के टाइम में पहले क्या था हमारा जो 19th एंड 20th सेंचुरी से पहले की बात है कि प्री कॉलोनियल पीरियड की आप बात कर लो कि क्या था हमारा कि हमारे लिए कोई चाइल्डहुड टर्म नहीं थी। हम बच्चों को एक समान ही लेते थे। ठीक है, बच्चों को भी अडल्ट ही माना जाता था। जब बच्चे 5-6 ईयर्स के हो जाते थे तो उनसे भी काम करवाया जाता था। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि आप बच्चे हो तो आप काम नहीं करोगे। ठीक है, तो बच्चे जब 5-6 साल के हो जाते थे तो उनसे काम करवाना स्टार्ट कर लिया जाता था। वो चिल्ड्रन अडल्ट को उनको कहा जाता था और जो वर्क करवाया जाता था अकॉर्डिंग टू देयर लेवल होता था। जो अडल्ट्स जो बड़े हैं वो उनके अकॉर्डिंगली वर्क करते थे और जो स्मॉल अडल्ट्स हैं जो चिल्ड्रन थे वो उनको उनके अकॉर्डिंगली वर्क दिया जाता था। बट चिल्ड्रंस आर वर्किंग ऑल्सो, वो भी काम करते थे। देयर विल बी नो टर्म एज चाइल्डहुड। क्लियर? Children were often helping their families at work from the age of 5 or 6. The early factory system depended on the labor of चिल्ड्रन। ठीक है, तो जो फैमिली जो होती थी उसमें जितने भी बच्चे होते थे वो सब अपनी फैमिली को सरवाइव करने के लिए अर्न करते थे। ठीक है, और 5-6 एज में ही वो काम करना स्टार्ट कर देते थे और जितना भी फैक्ट्रीज़ का इंडस्ट्रीज़ का काम होता था वो इन बच्चों से करवाया जाता था। जो लेबरर्स होते थे वो यही सारे छोटे बच्चे होते थे। It was during the 19th and early 20th centuries that ideas about childhood as an influence stage of life gained influence. 19th और 20th अर्ली में सेंचुरीज़ में बेटा ये इंट्रोड्यूस हुआ कि जो बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, तो क्यों चाइल्डहुड टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हुई कि जो चाइल्डहुड है, जो बच्चों का बचपन है वो वापस नहीं आता। तो चाइल्ड लेबर टर्म जो है वो टर्म आई और चाइल्ड लेबर को अबॉलिश करने को बोला गया। ठीक है, पहले चाइल्ड लेबर ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद ही बोला गया कि बच्चों को इस उम्र में काम नहीं करवाया जाएगा, चाइल्ड लेबर नहीं होगी। इफ़ एनीबडी विल डू चाइल्ड लेबर देन दे विल बी punished or they have to give fine for it, it is illegal। और बच्चों को एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। So 20th centuries that ideas about childhood as a special stage of life gained influence. It then became unthinkable for small children to be at work and many countries passed laws banning child labor. At the same time there emerged ideas about compulsory education
and children were supposed to be in school rather than at work, and many laws were passed for this as well. तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने ये लॉज पास करे कि जो चाइल्ड लेबर है वो नहीं करवाया जाएगा. रादर देन चाइल्ड लेबर, जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएंगे, एजुकेशन लेंगे, काम पर नहीं जाएंगे. ठीक है. और प्रॉपर पहले प्राइमरी एजुकेशन होगी, उसके बाद वो जब बड़े अडल्ट हो जाएंगे आफ्टर 18 ईयर्स, तब वो काम करेंगे. Although there are some industries in our country that even today depend on child labor, लेकिन अब भी हमारी कंट्री में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जो चाइल्ड लेबर पर डिपेंडेंट हैं. ठीक है. एटलीस्ट पार्शली, सच एज कारपेट वीविंग, small tea shops, restaurants, matchstick making and so on. Child labor is illegal and employers can be punished as criminals. तो अभी भी हमारे कंट्री में ऐसी बहुत सारी और ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे कि कारपेट वीविंग है, स्मॉल टी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, जहाँ पर आपको चाइल्ड लेबर मिलेंगे. बच्चे जहाँ नहीं पढ़ते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है, या आप कह लो कि उनके पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि उनको पढ़ाया जाए, वो इसलिए उनको काम पर भेज देते हैं. बट ये जो चाइल्ड लेबर है ये इल्लीगल है. क्लियर. और एम्प्लॉयर्स को, जो भी उनको बच्चों से काम करवाता है, एम्प्लॉयर्स को पनिशमेंट है, और इसको क्राइम माना जाता है, और उनको फाइन भी लगता है और पनिशमेंट भी होती है जो चाइल्ड लेबर करवाता है. क्लियर. बट बाय फार द मोस्ट कॉमन वे ऑफ क्लासीफाइंग सोशल चेंज is by its causes or sources. Now see, it's very important. ये बहुत ज़्यादा देखो important है कि but by far the most common way, कि और ऐसे भी बहुत सारे causes हैं, sources हैं जिनसे society में social change आता है. So sometimes the causes are pre-classified into internal or endogenous and external or exogenous causes. There are 5 broad types of sources. Mainly 5 broad type of sources हैं. ठीक है. कौन से हैं? और causes of social change जिनके थ्रू social change society में होता है. Environmental, technological, economic, political and cultural. अगर इन सब में changes होते हैं, ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में सोशल चेंज अकर करता है. क्लियर. नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट कॉज ऑफ सोशल चेंज, दैट इज एनवायरनमेंट. क्लियर. देखो इसमें यहाँ पर एक पिक्चर भी बनी हुई है, अ चाइल्ड डूइंग स्किल्ड वर्क, कि वो किस तरह से स्किल्ड वर्क जो है बच्चा कर रहा है. चाइल्ड लेबर स्टिल हो रही है. Clear. Okay, now next point we are going to start discussing about causes of social change. Our first is environment, कि environment किस तरह से इफ़ेक्ट करता है हमारे social change में. So nature, ecology and the physical environment have always had a significant influence on the structure and shape of society. क्लियर. तो नेचर, इकोलॉजी एंड फिज़िकल एनवायरनमेंट जो है ये हमेशा जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी को शेप करने में और उसके स्ट्रक्चर में. Clear. This was particularly true in the past when human beings were unable to control or overcome the effects of nature. For example, people living in a desert environment were unable to practice settled agriculture of the sort that was possible in the plains, near rivers and so on. So the kind of food they ate or the clothes they wore, the way they earned their livelihood and their patterns of social interaction were all determined to a large extent by the physical and climatic conditions of their environment. इसमें बेटा पैराग्राफ में वो क्या समझा रहे हैं कि पहले के टाइम में पहले क्या होता था कि हमारी जो पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिससे कि कोई चेंजेस हम कर सके एनवायरनमेंट के अंदर. तो जो भी हमारे एनवायरनमेंट कंडीशंस होते थे उसी हिसाब से हमारे जो उस एरिया का
कल्चर है, फूड हैबिट्स हैं, ड्रेस है, वो सारी चीज़ें जो है उसी के ऊपर डिपेंड करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें कि राजस्थान है, तो देखो जो आपके एरिया में मिलेगा आप वही तो खाओगे, ठीक है। जहाँ पर बारिश अच्छी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल हरियाणा एंड पंजाब है, वहाँ पर वीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन अच्छी होती है क्योंकि वहाँ की लैंड फर्टाइल है, ठीक है। तो उसी हिसाब से वहाँ का कल्चर है, ठीक है। बैसाखी सेलिब्रेट हो रही है पंजाब में, ठीक है, और वहाँ का जो कल्चर है वो बहुत रिच है, तो उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब राजस्थान में ड्रॉट है, वहाँ पर फूड हैबिट्स जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली होंगी क्योंकि वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन कम है ड्यू टू सम नेचुरल रीजंस, क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है, ठीक है। The same was true for people living in very cold climates or in port towns along major trade routes or mountain passes or in fertile river valleys. तो जहाँ पर फर्टाइल लैंड होगी ऑब्वियसली वहाँ पर प्रोडक्शन अच्छी होगी और लोगों का जो ऑक्यूपेशन है और जो फूड हैबिट्स हैं, क्लोथ्स हैं, वो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट द एक्सटेंट टू विच द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी हैज़ बिन डिक्रीजिंग ओवर टाइम विद द इंक्रीज इन टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुई, हमारे इस चीज़ में भी चेंजेस होने लगे। तो टेक्नोलॉजी अलाउज अस टू ओवरकम और अडेप्ट टू द प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय नेचर। तो जो हमारे ऊपर नेचर ने प्रॉब्लम्स हमें दी थी, जैसे कि राजस्थान में सूखा पड़ रहा है या चिरापुंजी में बहुत बारिश हो रही है, तो इन चीज़ों को किस तरह से हमने कवर अप करना है, तो टेक्नोलॉजी उसको ओवरकम करती है। तो वो सोसाइटी में चेंजेस लेकर आते हैं। क्लियर? सो adapt the problems posed by nature, thus reducing the differences between societies living in different sorts of environments. On the other hand, technology also alters nature and our relationship to it in new ways. So it is perhaps more accurate to say that the effect of nature on society is changing इज़ चेंजिंग रादर देन सिंपली डिक्लाइन। तो अगर नेचर की इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हमारी सोसाइटी डिक्लाइन नहीं हो रही है, बल्कि उसके अंदर क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी। क्लियर? बट हाउ यू माइट आस्क, डज दिस इफेक्ट सोशल चेंज? तो बट ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इससे सोशल चेंज हो रहा है? Clear? The environment may have shaped societies, but how did it play any role in social change? ठीक है, तो इसने सोसाइटीज़ को शेप तो कर दिया है, लेकिन ये एज अ सोशल चेंज जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है। द ईजिएस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल आंसर टू दिस क्वेश्चन कैन बी फाउंड इन नेचुरल डिज़ास्टर्स। देखो, अब जब भी बेटा कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, फ्लड है, सुनामी है, अर्थक्वेक है, तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, लोगों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, सब कुछ फिनिश हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स फिनिश हो जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग ख़त्म हो जाता है। क्लियर? फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। सुनामी हुई, अर्थक्वेक है, तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो डाई हो जाते हैं, ठीक है। तो फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, फॉर एग्जांपल देयर आर 4 और 5 पर्सन्स इन वन फैमिली, ठीक है, जिसमें से कि 2 की डेथ हो जाती है, तो कितने रह गए, 3। फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब जो वो 3 रह भी गए, उनके पास भी तो आगे सर्वाइवल के लिए कुछ रहा ही नहीं, उनकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली फिनिश हो गई, सब कुछ तो फिनिश हो गया। तो इस तरह से नेचुरल डिज़ास्टर्स के कारण सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। So sudden and catastrophic events such as earthquake, volcanic eruption, floods or tidal waves like the tsunami that hit Indonesia, Sri Lanka, the Andaman Islands and parts of Tamil Nadu in December 2004 can change societies quite drastically. तो इन सब रीजंस के कारण सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आए थे। क्लियर? दीज चेंजेस आर often irreversible, that is they are permanent and they don't allow a return to the way things were। और ये बहुत टाइम ले जाते हैं थिंग्स को दोबारा वापस वैसा ही
लाने में, जो ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट मैनी ऑफ दोज हुज लाइवलीहुड्स वर destroyed by the tsunami will never be able to return to them again, and that many of the coastal villages will have their social structure completely altered. तो जहाँ पर ये बेटा नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं कोस्टल एरियाज़ में, सुनामी, ठीक है, जैसे, तो वहाँ पर कम्प्लीटली सोशल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है और वो दोबारा जो है वो वापस वैसा नहीं बन पाता. तो देयर आर न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स लीडिंग टू अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड समटाइम्स टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटीज़ इन हिस्ट्री. तो हमने ये बहुत अपने पास्ट में देखा है कि किस तरह से नेचुरल डिज़ास्टर्स ने कई बार सोसाइटी को या उस एरिया को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया है. So environmental or ecological factors need not only be destructive to cause change, they can be constructive as well. अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही थी सोसाइटी में, ये क्या थी, सारी डिस्ट्रक्टिव, जो कि ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ थी. अब क्या बता रहे हैं ये कि सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट की चेंजेस जो हैं उससे डिस्ट्रक्टिव ही नहीं होती हैं. चेंजेस जो हैं वो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव ही नहीं होते, कई बार सोसाइटी में कंस्ट्रक्टिव चेंजेस भी होते हैं ड्यू टू एनवायरनमेंट. जैसे कि a good example is the discovery of oil in the desert regions of West Asia, also called the Middle East, like the discovery of gold in California in the 19th century. Oil reserves in the Middle East have completely transformed the societies in which they were found. Countries like Saudi Arabia, Kuwait, or the United Arab Emirates would be very different today without their oil wealth. तो वो क्या बता रहे हैं कि देखो ये सारी चीज़ें भी तो हमें एनवायरनमेंट से ही मिली. जैसे अरब कंट्रीज़ में है, कुवैत में है, सऊदी अरेबिया में ऑयल मिला, कहाँ से मिला, एनवायरनमेंट से, लैंड से. तो उससे उनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई. अगर उन्हें एनवायरनमेंट से ये सारी चीज़ें ना मिली होती तो उनकी सोसाइटी एक डिफरेंट सोसाइटी होती. अब उन्हें जो एनवायरनमेंट ने, लैंड ने ऑयल दिया है, ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है जो वहाँ पर, तो उससे उनकी सोसाइटी टोटली चेंज्ड है. कैलिफोर्निया में गोल्ड मिला, ठीक है, तो उससे उनकी सोसाइटी रिच सोसाइटी बन गई. उनके कल्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, ट्रांसफॉर्म हो गए वो एकदम से. सो इट्स एक्सप्लेनिंग क्लियरली दैट और चेंजेस कुड नॉट ओनली बी डिस्ट्रक्टिव बट दे कैन बी कंस्ट्रक्टिव एज वेल. कि अगर नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण डिस्ट्रक्शन होती है तो इस तरह से, जिस तरह से ऑयल रिजर्व्स मिले हमें मिडल ईस्ट में, और ये सारे चेंजेस, गोल्ड मिला कैलिफोर्निया में, तो ये कंस्ट्रक्टिव चेंजेस भी हुए सोसाइटी के अंदर एनवायरनमेंट के कारण, ड्यू टू एनवायरनमेंट ओनली. सो वी हैव completed our topic environment. In tomorrow's video we will do technology and economy. Thank you and have a nice day.